Welcome in learning maths in easy way. To explain identities of chapter number 2 polynomial class 9. So first identity is x plus y square, means it is first term, it is second term. So expansion is first term square plus second term square plus 2 into first term into second term. So there are many types of example in which we apply these identities. So let us discuss the example of like x plus 3 square. Okay, you have to find this x plus 3 square. तो that means ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है और x plus 3 in this form में भी हो सकता है. So we can write it as x plus 3 whole square. Now this form is same as here and answer will be first term square. Here it is first term, it is second term. Second term square plus 2 into first term into second term. So it will be x square, 3 square is 9 plus 3 2 just 6, 6x. So by this way we can apply these identities. Now एक तरह के और क्वेश्चन होते हैं कि you have to find out the square of 103 square. So we can just find the square of that by multiplying like that. हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है. So we have to use the identity. We can write as 100 को we can write 100 plus 3 square. Okay. Now it is x, it is y. So first term square plus second term square plus 2 into first term into second term. It will be 10,000 plus 9 plus 200 into 3. 600. So answer will be 10,609. तो ये बहुत ही easy हो जाता है कैलकुलेशन के लिए if you apply the identity. Now the second identity is x minus y square. Okay, whole square. It is first term square plus second term square and this term में ये minus हो जाता है. ठीक है, means minus 2 into first term into second term. अब इसको कैसे apply करते हैं? So I write here example is x minus 5 into x minus 5. So we can write it as x minus 5 square same as first term square plus second term square. Here it is first term, it is second term. Minus 2 into first term into second term. It will be x square plus 25 minus 10x. So by this way we can expand this. और एक और different type के examples होते हैं कि if the number are nearer to hundreds like that कि 98 है तो we cannot write it 90 plus 8. तो ये तो हमारे लिए फिर से बहुत मुश्किल हो गया है कि हम 90 का स्क्वायर करें 8 का स्क्वायर करें. So in this condition हम इसको कैसे लिखते हैं 100 minus 2 square. So it is very easy to square of 100 or 2. So by this way we can do the square of that. कैसे first term square plus second term square minus 2 into first term into second term. It will be 10,000. ठीक है, plus 2 2s are 4. 100 into 4 that is 400. तो ये क्या हो गया आपका 10,000 और 10,004 में से 4,000 को आप इजीली माइनस कर सकते हैं. इट विल बी लाइक दैट 4069. सो आंसर विल बी 9604. सो इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी सेकेंड. नाउ इट इज द थर्ड आइडेंटिटी first term square minus second term square. So we can write it as in one bracket first term plus second term, in another bracket first term minus second term. अब इसको अप्लाई कैसे करना है? जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि simplify x square minus 625. तो how we can apply it? तो it is very easy to solve. We can write x square minus, we know that it is the square of 25. Okay, now the question is this is first term, this is second term. So एक term में आ गया आपका plus और we can write it in one bracket x minus 25. Okay, so by this way you can do the factorize of it. और second example
93 इंटू 107, ठीक है, एंड वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई ऑफ इट। तो हमें क्या करना है, हम इनको सेम नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आई कैन राइट इट एज 100 माइनस 7 और वी कैन राइट इट 100 प्लस 7। ओके, तो अब ये क्या हो गया, एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में प्लस विद द सेम टर्म, तो वी कैन मूव हियर, हम इधर भी मूव कर सकते हैं। मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, इट विल बी 10,000 minus 49. No scope. Now we can solve it. 100, it is 10, 10 minus 9 is 1, here 9 minus 4 is 5, 9, 9. So 9951 will be the answer of it. So by this way you can apply this identity. Now it is identity 4. Here x plus a, x plus b. ये हमारे वेरिएबल भी हो सकते हैं और इन्हें कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल में आई विल एक्सप्लेन इट। हियर इट इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म और ब्रैकेट में दीज टू आर ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी। तो ये आइडेंटिटी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट हाउ वी कैन अप्लाई इट, जब हम इसको अप्लाई करेंगे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी मोर इजियर। लेट एग्जाम्पल लेते हैं। इफ द क्वेश्चन इज x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। Now these first term is same but the second term is not same, तो यहाँ पर फोर्थ आइडेंटिटी अप्लाई होती है हमारी। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में सम ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस 5 इंटू 3, it will be x square plus 5 3 8x plus 15. So by this way we can use it. और एक another example लेते हैं कि let the question is 103 into 107. So इसमें भी we can use it कि हम इसको लिख सकते हैं 100 plus 3 और 100 we can write is 100 plus 7, ठीक है। तो it will be same, first term square plus first term in bracket 3 plus 7 plus 3 into 7. Okay, it will be 10,000 plus here 7 or 3 10, 10 into 100 is 1,000 plus 21. So it will be what, 11,021. So by this way you can apply this fourth identity. Now come to the next identity, fifth. Here there are the three terms, first second third, x plus y plus z का whole square, ठीक है। and the identity is first term square plus second term square plus third term square and the plus 2xy। इसको किस तरह से लेते हैं, देखो ये x y z ऐसे, first term is 2 into xy, then 2 into yz and the third is 2zx जो यहाँ पर है हमारे, ठीक है। इसको इसी सीक्वेंस में वी हैव टू लर्न इट कि पहले एक्स वाई देन वाई जेड और देन जेड एक्स। सो हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इज लेट 4a माइनस 2b और माइनस 3c होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्लस की जगह मैंने माइनस लिया है, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। हम क्या करेंगे, जब भी माइनस होता है और आइडेंटिटी हमें प्लस की पता है तो वी हैव टू टेक दिस नंबर विद द साइन। सो हाउ वी एक्सपेंड इट, इट इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस, नाउ द सेकेंड टर्म इज होल माइनस 2b स्क्वायर प्लस, ऐसे ही थर्ड टर्म विल बी माइनस दिस, ओके। नाउ प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ओके। देन डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। अब फिर से वही लेना है, पहले हमने क्या लिया 2 इंटू दिस एंड दिस, अब हम लेंगे 2 इंटू दिस एंड दिस। सो आई राइट हियर कि जिससे आप कंफ्यूजन ना हो, 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 3c एंड द नेक्स्ट वन इज लाइक दैट प्लस 2 इंटू माइनस 3c इंटू 4a, ओके। अब आपको ये पता चल रहा है कि किस तरह से मैंने टर्म लिखा है। नाउ एक्सपेंड इट, 4 स्क्वायर इज 16a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 2 इंटू माइनस 2, इट विल बी 4b स्क्वायर, इट इज 9c स्क्वायर। साइन का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इस पूरी टर्म में अब एक बार माइनस है तो टर्म विल बी ऑफ
negative. 4 2s are 8, 2s are 16 AB. Same as here, there are 2 minus sign, so term will be positive. It will be 2 2s are 4, 3s are 12 BC. Okay, and the last term is of have minus, मतलब एक नेगेटिव साइन है, so the term will convert it into negative. 3 2s are 6, 4s are 24 AC. Now this is the answer of this. So by this way we can expand our question. Okay. Now it is next example of this कि अब हमें इधर से दिया हुआ है, right hand side is given and we have to come to the left side. तो how we apply it कि कैसे करते हैं, देखिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये इसी कॉम्बिनेशन में. तो वी कैन राइट इट एज 9x स्क्वायर को आई कैन राइट हियर 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 4y स्क्वायर को आई कैन राइट 2y स्क्वायर, z स्क्वायर को आई कैन राइट z स्क्वायर, z होल स्क्वायर. नाउ अब ये क्या हो गया, हमारे आइडेंटिटी में तो प्लस टर्म थी, यहाँ पर माइनस हो गई. तो ये माइनस क्यों हुई, वाई इट इज माइनस टर्म, बिकॉज क्योंकि x या y में से एक टर्म माइनस की हुई होगी, तभी तो ये टर्म माइनस में कन्वर्ट हो गई. तो हम क्या करते हैं, हम इनमें से एक टर्म को माइनस कर देते हैं. जैसे हमने 4y लिखा है तो मैं x की जगह माइनस 2y कर देती हूँ, तो इट विल द सेम टर्म, ये तो हमारी सेम ही रही और ये माइनस में कन्वर्ट हो गई. तो हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. ओके, नाउ 3 2 जा 6, 2 जा 12 और माइनस 12x का, ये हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया. नाउ द सेम एज हियर माइनस 4yz, तो इसमें ऑलरेडी y की टर्म हमारी माइनस में है, तो इट विल कन्वर्टेड एज माइनस. तो ये प्लस 2 इंटू माइनस 2y इंटू z. ओके, एंड द लास्ट टर्म इज 6xz, सो इट विल बी प्लस 2 इंटू 3x इंटू z. ओके, नाउ ये आइडेंटिटी राइट साइड वाली कन्वर्ट हो गई, सो वी कैन राइट इट एज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, बिकॉज द सेकेंड टर्म इज इन माइनस, तो हम इसे माइनस लिख रहे हैं, और प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर. सो ये दोनों तरफ से हो सकती है, मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड देके वी कैन प्रूव द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड से वी कैन कम टू द लेफ्ट साइड. सो बाय दिस वे यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटीज. If the concept of this video are clear to you, so like this video, share it and subscribe and press the bell icon. Thank you.